आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। राफेल डील के बाद कांग्रेस अब सीबीआई डायरेक्टर को जबरदस्ती छुट्टी पर भेजने को लेकर सरकार को घेरने पर उतर आई है। आज सीबीआई हेडक्वार्टर दिल्ली में जहां पार्टी सदर राहुल गांधी की क़यादत में मुजाहरा हुआ, वहीं पार्टी कारकुनान ने सभी रियासती सीबीआई हेडक्वार्टर्स पर पहुंच करके नारेबाजी की। और ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के अलावा बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई की, जहां पर हजारों कारकुनान ने पहुंचकर तनाजे के लिए सीधे तौर पर पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया। इस मौके पर पार्टी सदर समेत सभी लीडरान ने कहा कि मरकजी हुकूमत तमाम जांच एजेंसियों में दखलंदाजी कर रही है, जिससे कि मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं। जहां कांग्रेस इस मामले को सीधे तौर पर राफेल डील से जोड़कर देख रही है, तो वही मरकजी हुकूमत का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई इशू नहीं है, इसलिए वह ऐसे मामलों को इशू बना रही है। ये सीबीआई ऑफिस है, इस पे लोग खड़े हैं। जानता हूं मैं जानता हूं कहाँ है। इस पे लोग खड़े हैं और इस बिल्डिंग के अंदर लोग हैं और ये पुलिस वाले खड़े हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम आप पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, आप पर आक्रमण प्रधानमंत्री कर रहा है। चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन पर नरेंद्र मोदी आक्रमण कर रहा है। और इस आक्रमण का सिर्फ एक कारण है, नरेंद्र मोदी। There is a definite move from the government of India to curtail the power of the investigating agencies. There is a move from the government of India to sabotage the integrity of the honest officers in the important investigating agency like CBI. That midnight move, entire Indian people has been shocked by hearing the midnight move of changing the guards in the CBI. Actually, one guy has been caught because of corruption. What the people will expect that guy is going to punish. Instead of that, the investigating office, the CBI chief himself also changed. What does he mean? Honest officer also changed along with the culprit office. There were Rafael deal. Certainly. Yesterday, Congress President categorically stated that there is a move to sabotage the investigation of Rafael. This is a clear message. Those who are going to honestly investigating these cases, they will be punished. They will be. An honest officer, when investigating a senior officer who is indulged in or alleged to be corrupt or taken bribes, how come such an officer, and that to an acting director, if government claims that this acting director is a temporary, who gave him the authority to transfer such officers to Andaman Nicobar? It clearly explains what government saying the director was on leave, which is not factually correct. And even if has to be sent on a leave, why that was not given before? When serious allegations of corruption leveled against director and additional director, that too the corruption deeds of Narendra Modi is been investigated and his crony capitalists been investigated. They have a track record, as I said earlier, whenever Reliance, whether Dhirubhai Ambani or Anil Ambani has been raided or investigated. This is what the NDA government did it in the past and are doing it now. Definitely, if anything is going wrong, it is the public money. It is our tax money. How any person without any experience, such a big Rafael issue, the aircraft issue, they have given for the agreement. The independent body, our Prime Minister was involved and immediately is transferred. Now they are saying we are not transferred. He has gone to the leave. He has gone to his wife's place. He has gone to the daughter's place. It is all bull story. It is a really scam. So his scam should come out. People knows about Narendra Modi is not open his mouth.
repeatedly our Rahul Gandhi is asking, but he is not giving any reply. So that's why all our country, CBI office, all the Congress people, like-minded who are don't want to the corruption in this country, though everybody can participate. तो सीबीआई तनाज़े पर कांग्रेस के हंगामे पर क्या कुछ कहना है मरकजी हुकूमत का, आइए वो भी सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस के पास जो है जनहित से जुड़ा मुद्दा कोई शेष नहीं बचा है, इसलिए अनावश्यक इधर उधर के मुद्दों को लेकर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सर, वो कह रहे रात को 2 बजे उनको हटाया गया, तमाम आरोप लगा रहे राहुल गांधी से डायरेक्ट। भाई, ऑलरेडी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का आज ही जो है फैसला आया है, तो अब कोई एक अथॉरिटी उसकी जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सीबीआई विवाद में, वो एक बहुत पॉजिटिव और एक सकारात्मक कदम है। एक विवाद था और विवाद ये था कि एक ही केस में एजेंसी, उसके डायरेक्टर का एक मत था, स्पेशल डायरेक्टर का दूसरा मत, कि भ्रष्टाचार के आरोप किसके खिलाफ सही है। वो एजेंसी जो भ्रष्टाचार की जांच करती है, उसके बड़े 2 अधिकारी किसी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का शिकार बन जाएं, तो यह आवश्यक है कि बहुत ही अच्छे स्तर की और निष्पक्ष स्तर की उस पर जांच होनी चाहिए। सीबीआई पे सुपरिटेंडेंस का अधिकार करप्शन केसेस के संबंध में सीवीसी के पास है। यह सीबीआई की अकाउंटेबिलिटी का एक लेयर है। सीवीसी ने इसलिए यह आदेश दिया, जिसको सरकार ने स्वीकार किया, कि जब तक यह जांच चल रही है, चाहे सीवीसी में या कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, तब तक दोनों अधिकारी अलग बैठे, एजेंसी से बाहर बैठे, क्योंकि वो उस एजेंसी में नहीं हो सकते जो उन्हीं के खिलाफ जांच कर रही है। वो तो फिर निष्पक्ष जांच नहीं रहेगी। इधर विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर जगनमोहन रेड्डी पर हमले की जांच के लिए वाईएसआर कांग्रेस हैदराबाद हाईकोर्ट पहुंच गई है। पार्टी का कहना है कि वो अदालत से आजाद एजेंसी से जांच की मांग कर रहे हैं। इस बीच इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। वाईएसआर कांग्रेस जहां इसके लिए सीधे तौर पर टीडीपी को जिम्मेदार बता रही है, वहीं बीजेपी भी उनकी हिमायत की बात करती नजर आई, जबकि टीडीपी ने हमले की मजम्मत करते हुए ऐसे मामले को लेकर के परहेज करने की बात कही है। पार्टी लीडर लंका दिनाकरन का कहना है कि एयरपोर्ट की हिफाजत मरकज के जिम्मे आती है, इसलिए रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाना गलत है। वाज़ेह है कि कल विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर वाईएसआर कांग्रेस के सदर जगनमोहन रेड्डी पर चाकू से हमला हुआ था, जिसके बाद वीवीआईपी हिफाजत पर ही सवाल उठने लगे। एक मुश्तबा शख्स खुद को रेड्डी का हामी बताकर उनसे सेल्फी का मुतालबा कर रहा था और इसी दौरान उसने उनके बाजू पर चाकू मार दिया। An incident, an attempt on Sri Jagan Mohan Reddy, our party president, has occurred, and the intention of the attacker was very clear, and he came, first of all, the point is how a knife which is used for cockfighting has allowed to be brought inside the airport by police authorities. This is first point. Secondly, a person who is working in canteen of airport was allowed to hold it and carry it. How he was not frisked? Why? Why he was allowed to go scot-free with the knife what he has carried from outside? Thirdly, and the person who made an attempt was employed by the canteen which was hired to by a Telugu Desam party political leader by name Mr. Harsha. So all these parameters indicate the fact that there was a clear attempt to murder our party leader Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy garu. आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार के माहौल हैं, उसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर, विरोधों पर इस प्रकार की अटैक बार बार हो रहा है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कन्ना लक्ष्मी नारायण जी वो अलग अलग जिलों में प्रवास करने गए थे, वहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं बहुत हुए हैं और बार बार एक पॉलिटिक्स ऑफ इंटॉलरेंस, एक असहिष्णुता का एक माहौल आंध्र में बना हुआ है।
क्योंकि टीडीपी तेलुगुदेशम पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है वो पूरी तरह भयभीत है अपने इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के। उनकी बड़ी हार होना तय है, तो उस हार से बचने के लिए अपने विरोधियों पर इस प्रकार प्रहार करके उनको एक तरह से उनका मनोबल गिराने की एक साजिश रच रही है, इस प्रकार के आरोप है। जगन मोहन रेड्डी पर जो वार हुआ है उन पर एक कार्यकर्ता के द्वारा, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसमें न्याय जांच होनी चाहिए। We are strictly condemning the attack on opposition leader Jagan Mohan Reddy in Vizag airport. The airport, which is controlled by the Union Government Civil Aviation Minister, as well as the Defense Ministry, because Navy is there, the coordination of Civil Aviation and Defense Ministry is operating in the Vizag airport, where the incident was occurred today afternoon. It is very, very unfortunate. These kind of attacks never ever allowed in democratic country like India. But the things happening after the attack, the YSRCP wants to politicize the whole issue in order to get some sympathy and political gains. But it is not at all correct. These kind of incidents is every party should condemn, every leader should condemn. But as far as the security is concerned in this airport, is strictly confined to the union government. आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी ने एक बार फिर मोदी हुकूमत पर रियासत को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। रियासती वजीर पी नारायण ने कहा है कि तरक्याती कामों के लिए उन्हें रकम नहीं दी जा रही, जबकि उनके सभी तरक्याती काम तेजी से अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। वादे के बावजूद हुकूमत पैसा रिलीज करने में हीला हवाली करती है और इस मौके पर पार्टी तर्जुमान एस यामी ने बीजेपी तर्जुमान जीवीएल पर निशाना साधा है। वाज़ेह है कि जीवीएल नरसिम्हा लगातार टीडीपी हुकूमत को निशाने पर ले रहे हैं। Central is not supporting because as for Reorganization Act 2014, they have to support for administrative buildings and infrastructure, but they gave only 1,500. But we submitted UCs and the central government sent a team and they verified. Niti Aayog also gave a report to minister, central minister, that they are recommended 633 crores additionally in the month of June 14, but so far they have not released it. Like that they are not supporting. But with the experience of, vast experience of our CM, he is managing funds. Like that actually we are going forward. In this administrative capital city, buildings are under construction, HODs and secretaries and ministers buildings, 5 towers. 1 tower is 56 floors, remaining are 48 floors. And civil court construction is under process, 80% it is over, only 20% is there. At the same time, High Court building construction is also under process. At the same time, 3,840 buildings for residential of officers, it is under construction. Out of that, 730 slabs are over. If you take all India service officers, MLAs, MLCs, 432 apartments, out of that 132 are completed. NG was 2016, out of that 356 completed. Gazetted officers 1,440, 234 completed. Like that actually it is going on. By 2019 March we will complete all these slabs. Bharatiya Janata Party, Jansena and YSRCP are the biggest threat for the state. They are the people who are stopping the development of Andhra Pradesh. And if we particularly observe the so-called leaders of Bharatiya Janata Party like Mr. GVL or Kanna Lakshmi Narayana Garu and Ram Madhav Garu being national president or the national secretary for the Bharatiya Janata Party,
He has alleged so many things on the Telugu Desam party government and also on the ministers and MPs. So, sir, kindly you have to look at your back before commenting on the state of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh has received more than 550 awards in the last 4.5 years from your central government. So, where is the question of the corruption and awards? So, corruption and awards cannot be in one place. So, please think before. And second thing is BJP every week, like, if you particularly observe, they are coming in the weekends or they are highlighting one issue without showing any proper proof. And the state government and Telugu Desam party, we have all the proofs and we are ready for any debate with any person, not only GVL. इधर तमिलनाडु असेंबली स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट के बरकरार रखने के खिलाफ मुतासिर एमएनए ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। टीटीवी दिनाकरन ग्रुप के सभी 18 अरकान असेंबली ने मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया। वाज़ेह है कि एआईएडीएमके की मुखालफत के बाद असेंबली स्पीकर ने सभी 18 अरकान को नाअहल करार दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला देने के बाद इसे 3 रुकनी बेंच के हवाले किया, जिस पर कल फैसला देते हुए अदालत ने स्पीकर के फैसले को सही माना है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले से एआईएडीएमके लीडर दिनाकरन ग्रुप को झटके के तौर पर देखा जा रहा है और इस हालात में मुतासिर अरकान असेंबली के पास सुप्रीम कोर्ट जाने और फिर इंतखाब लड़ने का रास्ता ही बचता है। I am here in Madurai from Chennai to discuss about the next legal recourse, and I have explained the legal facts, and all the 16 MLAs who are available here, they have agreed. They have decided unanimously to file the case before the Supreme Court, challenging the verdict. Yes, as a lawyer who has contested the case, there are errors, there are some flaws on the part of the verdict, which has to be challenged. That is our grounds. Because first we have to set the grounds. We have taken the consent. First, an approval, I need a wakalat. They all have agreed. 16 MLAs are here. 2 MLAs are in Chennai. They have also agreed. So all the 18 MLAs are unanimously challenging by individual writ petitions. And we will file before the Supreme Court. We will challenge the verdict. And grounds we will set it down. कर्नाटक बीजेपी किसानों के कर्ज माफी का जो मुद्दा है उसे अब उठाने लगी है और इस मामले को लेकर के पार्टी कारकुनान मुजाहरा भी कर रहे हैं। कर्ज माफी के बावजूद भी अदा न किए जाने को लेकर के मुजाहरा हो रहा है। उनका कहना है कि महीनों के ऐलान के बाद अब तक किसानों को राहत नहीं मिली है और वह आज भी खुदकुशी करने को मजबूर हो रहे हैं। इस मौके पर रियासत में कानून इंतजामिया का भी मुद्दा उठाया गया। एहतजाज के बाद मेमोरेंडम भी दिया गया, जिसमें कि कहा गया कि इत्तेहादी लीडरान पूरी रियासत में खुलेआम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। डीसी ऑफिस को मेमोरेंडम दिए हैं, इसमें हम कांग्रेस गवर्नमेंट, अलायंस गवर्नमेंट जो है कांग्रेस और जेडीएस का, उसके खिलाफ में हमने दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो फार्मर के लोन वेव किए बोल के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी जी बोले हैं, अभी वेव आज तक नहीं हुआ। कागज में चल रहा है मगर लिखित में ऑर्डर कौन सा पे नहीं आया है। उससे फार्मर सब जो सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं। आज तक कोई फार्मर को जो लोन वेव का ऑर्डर नहीं मिला है। और बहुत से जो है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मरड़ माफिया जो रेती सैंड का जो है रात दिन लूट रहे हैं। लूटने में यहाँ के जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो पॉलिटिशियन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, उनके फॉलोअर शामिल हैं और उसमें फिर जो है पुलिस के ऑफिसर भी उसमें शामिल है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है कम्प्लीटली जो है फेलियर चल रहा है। हम इमीडिएटली गवर्नमेंट एक्शन लेना चाहिए और जो क्रॉप लोन जो वेव किए इमीडिएटली वो जो मना करके ऑर्डर्स आना चाहिए, नहीं तो ऑर्डर आने तक देर किया तो फिर अभी फार्मर सुसाइड करेंगे, मरेंगे। मरते हुए सीएम साहब को दिख रहे नहीं क्या? आज तक कितने लोग मर गए दिख रहे नहीं इनके आंख में, चुप बैठे हुए सरकार लगे। इधर तेलंगाना हज कमेटी ने रियासत में एक बार फिर टीआरएस की हुकूमत बनने का दावा किया है। मोहम्मद मसीउल्लाह खान का कहना है कि चंद्रशेखर राव के काम से रियासती अवाम खुश है, इसलिए वो उन्हें एक बार फिर मौका देने जा रहे हैं। रियासती हालात के मामले में हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने हज कमेटी के चेयरमैन मसीउल्लाह खान से खास बात की। तेलंगाना स्टेट के हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। मसीउल्लाह साहब, सबसे पहले जो है इंतखाबात की बात करते हैं। इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों से चल रही हैं और टीआरएस कॉन्फिडेंस में तो है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मुसलमान कुछ हद तक नाराज़ भी हैं आपसे? देखिए, नाराज़गी की जब बात बताऊं तो मैं नाराज़गी कभी मुसलमान
थे ही नहीं टीआरएस से, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हमारे सीएम साहब केसीआर साहब हैं, माशाल्लाह से जितने स्कीमात मुसलमानों को दिए, गुज़श्ता हुकूमतों में कोई हुक्मरान इतने स्कीमात नहीं दिए। जैसा कि शादी मुबारक ले लीजिए आप, जिसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है एक मुसलमान बच्ची की शादी के लिए, जो काफ़ी बड़ी रकम होती है, जो छोटी फैमिली होती है, जो वीकर सेक्शन फैमिलीज है, उनके लिए 1 लाख रुपए बहुत मायने रखते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ओवरसीज़ स्कॉलरशिप का जो है, जिसमें एक हमारी वाहिद हुकूमत है तेलंगाना में, जो हमारी टीआरएस पार्टी, जो हमारे हुक्मरान 20 लाख रुपए देते हैं एक मुसलमान बच्चे को जो बस यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाता है, भला ही अमेरिका जाने दो या कनाडा जाने दो, 2 सेमेस्टर करके देते हैं। स्टार्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर के 10 लाख रुपए देते हैं, सेकंड सेमेस्टर के 10 लाख रुपए देते हैं। इंतखाबात में किस तरह से अक़लियतों को नुमाइंदगी दी जा रही है? टिकटें जो बंटवारा हो रहा है टिकटों का, उसमें कितना आपकी पार्टी से अक़लियतों को जगह दी गई है? देखिए, अब तक तो हमारे पास से 2 मुसलमानों को, 2 माइनॉरिटी के लोगों को टिकट दी गई है, और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि माइनॉरिटीज़ में दूसरे भी लोग आते हैं, जैसा कि हमारे पास क्रिश्चियंस भी है, जैन भी है, सिख भी है, जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, वो लोगों को भी दी जा रही है। क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि महज 2 टिकटें और इतने ज़्यादा परसेंटेज आपके यहाँ माइनॉरिटी हैं, क्या लगता नहीं कि बिल्कुल कम है? देखिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ, माइनॉरिटीज़ के मायने खाली मुसलमान नहीं है, बल्कि दूसरे भी लोग हैं, वो लोगों को भी दी है। आप उनको भी काउंट करिए इसमें, तो आपको मालूम होता खाली माइनॉरिटीज़ मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटी में क्रिश्चियंस भी है, सिख्स भी आते हैं, तो तकरीबन लोगों को दिए गए हैं, और अभी और डिसाइड कर रहे हैं सीएम साहब, और भी लोगों को टिकट मिलेंगे इंशाल्लाह। क्या लग रहा है आपको, इलेक्शन किस तरफ जा रहा है? तमाम जो पार्टियां टीडीपी हो या तमाम पार्टियां कांग्रेस के साथ मिल रही हैं, एक महागठबंधन जो है यहाँ भी देखने को मिल रहा है। टीआरएस और एमआईएम तो साथ में है, लेकिन तमाम छोटी बड़ी पार्टियाँ जो है कांग्रेस के साथ नज़र आ रही हैं। देखिए, ये तो सीधे सीधे है, अब शेर का शिकार करने के लिए कई लोग एक होकर शिकार करना चाह रहे हैं। मैंने समझता हूँ कि शेर का शिकार करना इतना आसान है। हमारे सीएम साहब अक़लियतों के दोस्त है, जबकि मुसलमानों के दोस्त अगर कोई कहलाए जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो वाहिद केसीआर साहब है। शुक्रिया। मसीहुल्लाह साहब का कहना है कि केसीआर जो है एक शेर की तरह काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो है इंतखाबात में कहीं ना कहीं इनकी पार्टी को बहुमत मिलेगी, कामयाब हो। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, हैदराबाद। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ। रियासत की सियासत थोड़ी देर में।